الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی کلاس میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں ان میں سے ایک تو ہے کمپاس کے حوالے سے کچھ معلومات، اور دوسرا جو ہم نے پڑھنا ہے کہ اس حوالے سے کون سے کوئی اپلیکیشن وغیرہ سے مدد حاصل کی جائے، اور سورج چاند ستاروں کے ذریعے سے سمت قبلہ کا معلوم کرنے کا طریقہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ زوجہ رضا الہی کے لیے اصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے سبق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہم نے سمت قبلہ کے حوالے سے کئی طریقے ہم نے پڑھ رکھے ہیں۔ سورج کی مدد سے بھی ہم نے پڑھا، گوگل ارتھ کے اوپر کیسے نشان لگایا جاتا ہے یہ بھی۔ اب بات آتی ہے کہ اگر یہ چیزیں کبھی نہ ہوں تو پھر کمپاس کی مدد سے کیسے نشان لگائیں گے۔ تو کمپاس کے اندر ایک تو چیز بالکل عام ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی سا بھی کمپاس ہو، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جس کمپاس کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس سے کتنے فرق میں جا رہا ہے وہ کمپاس۔ اب دیکھیے، جیسے یہ آپ کے سامنے جو ابھی پکچر نظر آ رہی ہے تو اس میں 36 نمبر والا کمپاس ہے، یعنی این کے مقام پر 0 ہے، آگے 3 6 9، ای کے مقام پر 9 آ گیا، اس طرح ایس کے مقام پر 18، ڈبلیو کے مقام پر 27 اور این کے مقام پر 36۔ تو یہ جو ہے 36 نمبر والا کمپاس، ظاہر سی بات ہے 360 نمبر والے کمپاس سے سیدھے ہاتھ والے ایک ہنسا ہٹا دیں گے تو خود ہی یہ بن جائے گا، یعنی اس کا پوائنٹ لگا دیں گے۔ اب ہم نے پہلے لیول کے اندر 400 یا 40 نمبر والے کمپاس سے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، تو 400 یا 40 نمبر والے کمپاس کا کیسے نکالتے ہیں وہاں پہ ہم پڑھ کے آ گئے۔ اب چیز آتی ہے کہ ان کمپاسوں کی احتیاط کیسے کی جائے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، کمپاس ایک میگنیٹ آلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا آلہ تو یہ ایرر بھی کھائے گا، اور اس کے لیے اس کی پھر احتیاطیں بھی زیادہ کرنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ اگر اس کو زمین پر رکھیں گے، ہو سکتا ہے زمین کے نیچے لوہا ہو، تو جب زمین میں لوہا ہوگا تو وہ یہ اس سے ایرر کھائے گا اور غلطی کر سکتا ہے۔ اس کو کسی ٹیبل پہ رکھا، آپ کی جیب میں کوئی لوہا وغیرہ ہے تو مسئلہ ہوگا۔ اور میں ایک اپنے چند ایک تجربات شیئر کرتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہے نا میں نے اس کے اندر دیکھی، میں حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بند پنکھا ہے، چھت والا جو فین ہے، تو اس کے نیچے رکھا تو یہ کچھ اور سمت بتا رہا تھا، لیکن جب پنکھا ہم نے چلایا، آن کیا کہ پنکھا بند، آن کیا تو اس کی سمت بدل گئی۔ تو لہٰذا اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ بند مشینری اور چلتی مشینری سے بھی یہ ایرر کھاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا کتنے سے فرق پکھائے گا، تو میرے ہاتھ میں ایک تقریباً کوئی زیادہ نہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 1 پاؤ ہوگا لوہا تھا، وہ میں نے اس کے اوپر گھمایا تو اس سے بھی اس نے واضح ایرر کھایا۔ ایک تو ہوتا ہے ایرر کھاتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، لیکن واضح ایرر اس کا محسوس ہو رہا تھا کہ کمپاس اس سے ایرر کھا رہا ہے لوہے سے، اور وہ زیادہ نہیں، صرف 1 پاؤ تھا تقریباً۔ تو یہ دیکھیے کہ اتنے کم چیز سے جب یہ ایرر کھا رہا ہے تو اس کی پھر احتیاطیں بھی اتنی زیادہ کرنی پڑیں گی۔ اور اس کی احتیاطوں کے لیے کہ اس کا کوئی لکڑی کے ٹیبل پر ہو، کوشش کریں کہ لکڑی کا ٹیبل ایسا ہو جس میں حتی الامکان لوہے کے کیل نہ لگے ہوں، یا پھر ہوں تو کم سے کم لگے ہوں، اور پھر اس سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر چانو جانے تقریباً آپ لوہے، میگنیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے دور رکھیں۔
मोबाइल से भी दूर रखें। तो अब यह है कि ये कंपास फिर आपको काफ़ी अच्छी जो है समत बता सकता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये तो हो गया कंपास का। और आपने इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो तभी ज़ाहिर है कि तकरीबन बंदा इस्तेमाल करता है कि जब कोई और हाल ना हो, वरना हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि किसी और चीज़ की मदद से निशान लगा लें। अच्छा, अब ये चीज़ है कि हमने फ़र्ज़ कीजिए कि कंपास हमारे पास नहीं है, तो कंपास के लिए क्या करें? तो कंपास की एप्लीकेशन एक से बढ़कर एक आ चुकी हैं। उसमें नीचे नंबर भी लिखा होता है, तो आप उस नंबर की मदद से आप निकाल सकते हैं कि ये कौन सी समत है। बाकी वही बात है कि वो गलती तो करेगा, क्योंकि हम कहते हैं मैग्नेट से, लोहे से इसको दूर करें, लेकिन मोबाइल खुद एक मैग्नेट है और उसके अंदर ये कंपास मौजूद है, तो जाहिर सी बात है एरर खाएगा। अब चीज़ अगली आती है कि दीगर सितारों वगैरह की मालूमात अगर हमने लेनी हो तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्यारा मोहतरम इस्लाम भाइयों, तकरीबन सितारे सियारे वगैरह उनकी समत हम एप्लीकेशन के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बताता हूँ कि आपको किसी सितारे सियारे की पहचान अगर हो गई तो आपने सबसे पहले निशान किस तरह लगाना है, उसके बाद ज़ाहिर है फिर हम उसके निशान को घुमाएंगे और उसके बाद फिर आपको चंद सितारों सियारों वगैरह के हवाले से मालूमात भी देते हैं, जिनके अंदर कुतुबी तारा भी शामिल है। सबसे पहले तो यह कि आप ज़मीन पर बिल्कुल सीधा कोई बांस, कोई सरिया वगैरह बिल्कुल वर्टिकल खड़ा कर लें। अभी जैसे मैं एक वर्टिकल सरिया वगैरह लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने लगा लिया। अब चीज़ ये आती है, ये देखिए, ये जैसे फ़र्ज़ करें कि ज़मीन का निशान है। अब कोई सितारा है, तो वो सितारा फ़र्ज़ करें कि इस साइड पर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप कोई चीज़ लगाएंगे, कोई सरिया वगैरह लगाएंगे, कुछ थोड़े फासले पर इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए मैं इस वाले से लाइन बना के समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपने कोई सीधा बांस लगाया और ये बांस छोटा होगा, अगला बांस बड़ा होगा। इसके सिरे पर आप खड़े होकर देखेंगे, अगले के सिरे पर आपको वो तारा नजर आएगा। तो इस तौर पर अब दोनों बांस जो आपके लगे होंगे या सरिये लगे होंगे, ये बिल्कुल सीधे में लग जाएंगे, कोई भी तारा है। अब आप तारे की पहचान भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप निशान लगा लेंगे, इस निशान को लेकर फिर आप घुमाएंगे, जो कि आपको जिले नेहराफ का तरीका बताया गया है पहले लेवल के अंदर, निसाब तौकीफ में, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो अब आपने फिर ये देखना होगा कि ये तारा वगैरह जो है ये कितनी गलती पर जा रहा है। जरा जितनी गलती आपको पता चलेगी, आप अपनी गलती दुरुस्त कर लेंगे, उसको दाएं या बाएं घुमा देंगे। अब इस हवाले से जो मुझे एप्लीकेशन मिली हैं, तो दो एप्लीकेशन मुझे कमाल की मिली, जो कि मुझे सितारों वगैरह की मालूमात बड़ी ज़बरदस्त देती है। और उसके लिए वो कौन कौन सी हैं, आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और उसके अंदर से कैसे आप सितारों वगैरह की समत निकाल सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अभी मैं कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, और मोबाइल पर आपको फिर दिखाता हूँ कि उसको हम कैसे लगा सकते हैं उसके ज़रिए से निशान। ये देखिए, सबसे पहले तो ये है
ये स्काई व्यू आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा उल्टे हाथ पे, सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन। आप इसको क्लिक कर लेंगे, ये देखिए अब ये मैं जिस सम्प में मोबाइल लेके जा रहा हूँ ये उस सम्प में के मुझे तारे वगैरह सारे दिखा रहे हैं। अच्छा, आप किसी भी तारे को टच करेंगे उस तारे की घूमने की जो गर्दिश है ये वो बताएगा। जैसे देखिए मैं ये तारा ऊपर नजर आ रहा है, मैं इसको टच किया मैंने, ये देखिए इसने साथ में इसका नाम भी दे दिया और इसकी जो सर्कल है वो भी दे दिया। मैं मजीद जानिब शिमाल लेके जाता हूँ और ये तारा घुमाता हूँ। ये जी ये कह रहा है कि जी ये पोलरिस है, यानी बाई चांस मैंने कुतबी तारे को टच कर दिया। तो चूंकि ये तारा जो है अपने मकाम पर ही गर्दिश करता रहता है, लिहाजा इसका इसने कोई मुझे साइड नहीं बताई। इसके साइड वाला कोई भी तारा मैं टच करता हूँ तो वो देखिए ये उसका सर्कल है। और अगर मैं इसे जितना कोई ज्यादा दूर वाला तारा दिखाता हूँ तो ये इसका सर्कल उतना बड़ा हो जाएगा, और दूर वाला तारा देता हूं तो ये उसका सर्कल इतना और मजीद दूर हो जाएगा। लेकिन कुतबी तारा जो है इसका सर्कल बड़ा नहीं है, ये अपने सर्कल अपने उसी जगह ही घूमता रहता है। तो आप खास इस एप्लीकेशन की मदद से कुतबी तारे की पहचान भी कर सकते हैं। अच्छा, कुतबी तारा एन शिमाल की तरफ होता है, देखिए नीचे एन लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपको, और एन से बिल्कुल ऊपर जो है वो कुतबी तारा है। एक तो होगी एप्लीकेशन ये, और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो ये देखिए इसी स्काई व्यू जहां पर हमने देखा था इसके साथ है डफ मून लिखा हुआ। वैसे तो ये चांद और सूरज की समत बताती है। देखिए अजीमत आप देखेंगे, अजीमत तो अजीमत के अंदर दे रहा है जी 160 डिग्री पर चांद इस वक्त घूम रहा है। यानी अगर वैसे तो अभी दिन का टाइम है, चांद नजर आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर नजर आ जाए तो 160 डिग्री पर होगा। यानी मशरिक 90 पर है, जुनूब 180 पर है, तो जुनूब से 20 दर्जे जानिब मशरिक है। तो अब मैं देखता हूँ नीचे इसके, देखेंगे आप तो प्लैनेट्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब इसमें ये दीगर सियारों का भी बता रहा है। मरकरी की अजीमत क्या कह रहा है जी, मरकरी की अजीमत कह रहा है 208 है। ऊपर आल्टीट्यूड प्लस में है, प्लस का मतलब ये उफुक से तारा ऊपर है ये सियारा, और ये 209 पर है। यानी ये एन जुनूब से भी जानिब मगरिब है, यानी 29 दर्जे मगरिब से जानिब जुनूब से जानिब मगरिब की तरफ है। इस तरह वीनस है, प्लस में है, 19 दर्जे ऊपर है लेकिन 252 दर्जे पर है। मार्स है, उफक से ऊपर है लेकिन और 214 पर है। जुपिटर है, अब जुपिटर के अंदर माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये जुपिटर जो है ये अभी नजर नहीं आ रहा, उफक से नीचे है, 321 डिग्री पर इसकी अजीमत चल रही है। ज़ाहिर जब हाई उफक से नीचे तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। इस तरह बाकी तारे भी हैं, जो भी हैं बाकी सारे फिर आगे तकरीबन माइनस में आते हैं। प्लूटो जो प्लस में आ रहा है जो वो नजर भी कम आता है। आमतौर पर वीनस को देखना ज्यादा आसान होता है, ये प्लस में आ रहा है 18 दर्जे प्लस में, 252 दर्जे पर। और ये इस वक्त हैं कहाँ पर, ये देखिए अब मैंने स्क्रीन पर कर दिया। ये उफक से जो ऊपर हैं वो इसने सारे शेक कर दिए। देखिए मशरक की समत में ये उल्टे हाथ की तरफ मशरक की समत है, सीधे हाथ की तरफ मगरब की समत है। तो मशरक की समत में प्लूटो उफक से ऊपर है, चांद ऊपर है, मरकरी तकरीबन दायरे निस्फ़ नहार पर टच कर रहा है। इस तरह मार्स जो है ये उफक से ऊपर है, बल्कि मरकरी भी मगरब की जानिब ही है। इस तरह सूरज मगरब की जानिब है, और इससे नीचे वीनस है, यानी वीनस सूरज से चूंकि नीचे ही रहा, सूरज से पहले गुरूब हो जाएगा और सुबह सूरज से पहले तुलू भी हो जाएगा, तो लिहाजा सुबह के टाइम में आप इसको देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप इसकी समत की पहचान कर लीजिएगा, उस टाइम ये किस जानिब घूम रहा है, और फिर उसकी मदद से आप समत किबला भी निकाल सकते हैं। अभी आज की हमारी क्लास यही थी कि चांद सूरज सितारे वगैरह के हवाले से बता दिया जाए और कंपास का इस्तेमाल एहतियातें बता दी जाएं। अभी आपने कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। ऐसे अभी जिसमें आया था कि 200 से जायद था, तो आपने कहा कि ये मशरिक जुनूब से मगरिब की तरफ है, तो ये समझ में नहीं आया था। जी, ये 200 से जायद, जैसे ये वीनस है 252 दर्जे। असल में देखिए कि एन शिमाल है 90 दर्जे पर,
सॉरी एन शिमाल है 0 दर्जे पर, मशरिक 90 और एन जुनूब 180 दर्जे पर और एन मगरब 270 पर, यानी 180 जुनूब और 270 मगरब, और ये है 252। ज्यादा 270 से कम करना पड़ेगा, यानी जाने पे जुनूब जाना पड़ेगा हमें मगरब से, वही बात है। अब जुनूब से मगरब की तरफ जाएं या मगरब से जुनूब की तरफ आए, तो दोनों सूरतों में ही आप इसकी पहचान सकते हैं। यानी मगरब 270 है तो ये मगरब से 18 दर्जे, खैर अब ये 253 पे आ गया, तो अब 17 दर्जे हो गया कि मगरब से जानिब जुनूब 17 दर्जे, या फिर जुनूब से मगरब की तरफ 180 से 353 की तरफ जाएं तो 20 और 53 73 दर्जे। 73 दर्जे मगरब से जुनूब से मगरब की तरफ चले जाएं या मगरब से जुनूब की तरफ 17 दर्जे आ जाएं, तो हिसाब तो वही पड़ जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा 253 दर्जे मगरब और जुनूब के बीच में। अब कितने बीच में, बिल्कुल दरमियान में नहीं, वो फिर मैंने बयान कर दिया कि 17 दर्जे मगरब से जुनूब की तरफ आ जाएं या फिर 73 दर्जे जुनूब से जाने में मगरब चली जाए। जी ठीक है। जी मदीना, मजीद कोई सवाल? जी मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।